याद रखें रोटेशन जब भी परफॉर्म होती है वो किसी एक एक्सिस के अबाउट परफॉर्म होती है, यानी देयर एग्जिस्ट एन एक्सिस जिसके अबाउट पूरी स्पेस घूमती है एंड दैट एक्सिस कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपका रोटेशन मैट्रिक्स फर्क है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्क होएगा। कोई और रोटेशन मैट्रिक्स है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्क होएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स। सो अगर मैं आपको रोटेशन मैट्रिक्स दे दूं, देयर शुड बी अ वे टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन अबाउट व्हिच द होल स्पेस इज रोटेटिंग। दो चीजें हैं रोटेशन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। कौन सा एक्सिस है जिसके अबाउट स्पेस घूम रही है और कितनी घूम रही है, एंगल ऑफ रोटेशन। मेक सेंस? So let's first target the axis of rotation problem, then we'll see the angle of rotation problem. Given a rotation matrix, how to find out the axis of rotation that it performs. Make sense? Okay. So let's say this is our rotation matrix. This is the rotation matrix R, 3x3 matrix. How to find out the axis of rotation? What is the property that is specific to the axis of rotation? Axis of rotation is, let's say, a unit vector, a vector with unit length. What is the property of that vector? वो चेंज नहीं होता, It will never change. It will not change. Will not change. That means the axis of rotation, let's say U has this property. वाह, If U is the axis of rotation, then rotated version of U is the same as U. And this is true only for the axis of rotation. Yes, no? Yes. दोबारा से देखें, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो वेक्टर है जो रोटेशन से चेंज नहीं होता। यानी अगर आप इस लाइन के अबाउट पूरी दुनिया घुमा रहे हैं तो ये लाइन खुद नहीं घूम रही ना, ये लाइन खुद चेंज नहीं हो रही। Make sense? ये कहीं ऐसे नहीं जा रही है, इसके अबाउट पूरी दुनिया घूम रही है। पंखा, हाँ जी, पंखे का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आप ले सकते हैं। Excellent. Make sense? अगर पंखे का ये जो रॉड है इसकी थिकनेस 0 के करीब हो तो Yes. Make sense? Okay. So RU is equal to U. Help me find out how to find Q. R is given. R is given. How to find Q? So okay, let me make it simple. R U minus U is equal to 0. This is zero vector by the way. Yes. Not. This is zero vector. No. Okay. What next? Zero. No. I times U is equal to 0. Backland. Null. Null. क्या बात है? This is a null space of R minus I. R is given, I is given. I mean, you know what is I. So the right null, the null vector of this is axis of rotation. It doesn't change. For those who know eigenvalues, that we will study in a good detail in the next lecture, inshallah. This actually RU is equal to U is actually U is an eigenvector corresponding to eigenvalue 1. So you can find out the axis of rotation using null space, or you can find out the axis of rotation using eigenvalues. So find out all eigenvalues, the one with एक eigenvalue ऐसी होगी जिसकी value exactly 1 होगी, उसके against जो eigenvector that is the axis of rotation. That we will revise and see in detail in the next lecture when we will see the eigenvalues. सही है? But if you do not know eigenvalues and you are comfortable with null space, that's perfect. Make sense? Yes, no. The second question is angle of rotation. How to find out angle of rotation? ये तो पता चल गया इस एक्सिस के अबाउट घुमाता है। ये कैसे पता चलेगा कि कितना घुमाता है, कितना एंगल है इसका? ठीक है? Sorry. Question? Okay. मैं अभी जो एंगल निकालने का एक फॉर्मूला लिखूंगा और थोड़ी देर बाद आपको प्रूव करेंगे। ठीक है? फॉर्मूला ये है। The angle of rotation is trace of R minus 1 divided by 2 and cos inverse of this. So अगर आपको R given है, take the trace of R, मैं थोड़ी देर बाद इसको प्रूव करूंगा। अगर आपको R given है
its diagonal entries. First diagonal entry, second diagonal entry, third diagonal. So these are three numbers. You add them up. That is trace. Trace is a number. -1 is a number. Divided by 2 is a number. Take cos inverse of that, and you find out the angle of rotation. So in short, in short, given a rotation matrix, you have all information about the axis of rotation as well as the angle of rotation. Make sense? With axis of rotation can be formed in this way. इस तरीके से निकाल सकते हैं. Angle of और इसका ये proof है. Angle of rotation ऐसे क्यों निकालते हैं अभी हम थोड़ी देर बाद इसको prove करते हैं. ठीक है. Yes sir. Okay, so अब मैं कुछ स्टैंडर्ड ये एंगल ऑफ रोटेशन भी प्रूव करता हूँ और कुछ स्टैंडर्ड रोटेशन आपको बताता हूँ. स्टैंडर्ड रोटेशन जो शायद आपने लीनियर डायग्राम में भी देखी हो. रोटेशन अबाउट z एक्सिस, रोटेशन अबाउट x एक्सिस, रोटेशन अबाउट y एक्सिस. मैं उनके मैट्रिसेस ड्राइव करता हूँ और वो बड़े यूजफुल होते हैं. उनको ड्राइव करता हूँ मैं स्टैंडर्ड रोटेशंस. टेक्निकली उनको कहते हैं गिवंस रोटेशन, GIVENS गिवंस रोटेशन. स्टैंडर्डाइज्ड रोटेशन भी आप कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट. Let me find out this. मैं सबसे पहले find out करूँगा rotation matrix that rotates about z axis. Z axis acts as axis of rotation. Okay. This is x, this is y, and let's say z is out. याद रखिए जब आप 2D में होते हैं ना, anti-clockwise makes sense. Anti-clockwise means this. तो फॉर एग्जाम्पल प्लेन पे एक फिंगर रख लें उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें उस प्लेन के ऊपर. दैट्स प्योरली डिफाइंड. दिस इज व्हाट वी मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज. जब आप 3D में होते हैं ना दिस स्पेस के अंदर, तो एक बंदा उस तरफ मुंह करके खड़ा है, ये अपनी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, जो उस तरफ से खड़ा हुआ है उसके लिए क्लॉकवाइज होगा. सो इन 3D defining the clockwise and anti-clockwise rotation is a bit tricky in 3D. And here is how people define and the mathematicians define the positive rotation या anti-clockwise rotation. जिस एक्सिस के अबाउट भी आपने रोटेट करना है, जिस एक्सिस के अबाउट भी आपने रोटेट करना है, उस एक्सिस की तरफ से ओरिजिन को देखें. Then rotate your hand anti-clockwise. That's the anti-clockwise rotation. मिसाल के तौर पे अगर ये x है, ये y है, ये z है, this is positive z. तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरफ खड़ा होके ओरिजिन की तरफ देखूँगा. अब ओरिजिन की तरफ देखने से अब मैंने अपनी व्यू फिक्स कर लिया है. नाउ आई विल रोटेट एंड दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज. मेक सेंस? अच्छा. यस नो? यस सर. अगर कोई आर्बिट्रेरी एक्सिस होगा, आर्बिट्रेरी एक्सिस, लेट्स से दिस इज जो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस, ये एक्सिस है आर्बिट्रेरी एक्सिस, इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगी. याद रखें इसकी जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी, जिसको आप कह रहे हैं दिस इज द एक्सिस, दिस इज डायरेक्शन, उससे ओरिजिन की तरफ आप देखेंगे एंड देन यू रोटेट दिस वे एंड दिस इज डिफाइंड टू बी द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन 3D. सही है? दिस इज हाउ वी डिफाइन द फिक्स. मेक सेंस? दोबारा से बताता हूँ. किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, so from that axis, so this is the positive direction of the axis. Axis की कोई डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की तरफ लेट से खड़े हो गए आप. ये मैं खड़े हो गए से नॉर्मल विजुअली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. And then see the origin. Now this is your view. इस व्यू में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन is the rotation, is the positive rotation. It's defined to be anti clockwise. रोटेशन में फिर भी दो एक्सिस ही होते हैं. रोटेशन हमेशा प्लेन में होती है. 3D के अंदर भी प्लेन में होगी. आप देखेंगे तो वो असल में वो प्लेन इनफाइनाइट होते हैं, तो सारे प्लेन्स घूम रहे होते हैं, तो आपको लगता है जैसे पूरी स्पेस घूम रही है. तो हम जब डिफाइन करेंगे, जब रोटेशन को हम अभी ड्राइव करेंगे, तो रोटेशन जो एक प्लेन में रोटेशन होती है ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो उस प्लेन के ऑर्थोगोनल होता है. और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऑर्थोगोनल लातादार प्लेन है. एक प्लेन कैसे घूमता है, सारे प्लेन्स ऐसे घूमते हैं, पूरी स्पेस घूमना है. मेक सेंस? वी विल ड्राइव इक्वेशन the transformation in about an axis using a plane. अभी देखिएगा. So good? Yes sir. Okay. This is x, y. This z is out. The positive z is out. मैं
and z outlet comes to this, coming out. Clear? Let's say this is some point x, y, and z. This is position vector of it, and this is its length r. The angle, let's say I rotate the whole space so that the point moves here, and this is x dash, y dash, and z dash. Make sense? And the angle of rotation is theta, and the rotation is anti-clockwise. If this is the positive z-axis, then this is the rotation. What is happening? Anti-clockwise with theta. See? About z-axis. Let's say the original angle of this vector with x-axis is phi. See? Then you can see x is r cos phi. Yes? By simply taking the right triangle, this coordinate, x coordinate is r cos phi. Yes or no? Because now we are in the plane xy. We are in the plane xy. जब z के about rotation होती है तो xy plane में होगी. Make sense? So x is r cos phi, y is r sin phi. और ये clear है नहीं कि sin phi yes है? अगर ये clear नहीं है तो please बताएं. Is that okay with each and everyone? If anyone has confusion, please ask. Why this is r cos phi? Why x coordinate is equal to that? Is that okay with everyone? Yes, no? Yes, sir. Okay. यार ये मैं बता दो तो मुझे confusion लग रहा है. This is r, this is r, this is phi. This distance is x, this distance is y, so this is x comma y. सही है? And cos phi is equal to r over x. अभी आपने FSC में जो भी याद किया था, सम पीपल है, कटली ग्राउंड है, ठीक है? x over r, sorry, x over r. X over r, yes. So then x is equal to r cos phi. Similarly, y is equal to r sin phi. Make sense? You can further see that x dash, it is equal to r cos what? R cos what? Phi plus theta. That's the angle. That's the angle. Phi plus theta. Yes? So x dash is equal to this, and y dash is equal to r sin phi plus theta. मुझे तो याद है वैसे sin alpha plus theta का फॉर्मूला जी. हम इस तरह मैप कर सकते हैं स्टेट ऑफ 3 एक्सिस हैं और जिस तरह एनिमेटेड वीडियोस में दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके ऊपर जा रहा है और लेट्स सपोज 3 एक्सिस हैं, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सिस से पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले मैप किया, अब वो आ रहा है लेट्स सपोज. उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर मूव किया, उसमें एंगल प्लस कर दिया और अब डिस्टेंस ये है, तो उस एंगल को हम निकालना चाह रहे हैं. एंगल ऑफ रोटेशन ये है उस ऑब्जेक्ट के लिहाज से एक्सिस पे. एंगल ऑफ रोटेशन एक एक्सिस के अलावा से भी निकल सकता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एंगल 3 भी निकल सकते हैं, उनको ऑयलर एंगल्स कहते हैं. कोई भी रोटेशन मैट्रिक्स जो है ना, वो कोई भी रोटेशन जो किसी एक एक्सिस के अबाउट होती है, आर्बिट्रेरी एक्सिस, वो रोटेशन अचीव की जा सकती है बाय फर्स्ट रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, देन रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, देन रोटेटिंग अबाउट जी एक्सिस. सो इनका कॉम्बिनेशन, और इन 3 एंगल्स को कहते हैं ऑयलर एंगल्स. सो मुख्तलिफ तरीके हैं एंगल्स निकालने के. एक एंगल जो है बिल्कुल एक एक्सिस के अबाउट है. 3 एंगल्स हैं जो इस एक्सिस इस यानी इन 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें या एक एक्सिस और एक एंगल वाले को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है सेम रिजल्ट. सो दिस इज द वे आप उसको कैसे व्यू कर रहे हैं, यानी उसको आप तोड़ के कंपोनेंट्स में व्यू कर रहे हैं या एज अ होल व्यू कर रहे हैं. सपोज के जरूरत है मुझे नहीं पता, मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं. यस ओके. कॉस अल्फा प्लस थीटा जी. अच्छा, ये जो फॉर्मूला याद किए होते हैं इनका एक ट्रिक ये होता है कि तेजी से बोले तो ये याद रहता है. Otherwise ये सवाल होता है. So cos alpha plus theta, cos alpha plus theta means alpha plus theta. That's the story. So if I open this up, I will get r cos phi sin theta cos alpha cos theta. देखा आराम से पढ़ो ना. हाँ, ये लिखने में जो डिले आया ना उससे माइनस r sin phi sin theta. Similarly, we have r sin alpha sin theta, sin alpha cos theta plus cos alpha Sin theta.
sine theta. Yes? Yes. Now see this, this is actually x, this is y, this is x, y again, this is x. So Original. now you can see that x dash, y dash, this is actually equal to cos theta minus sin theta, cos theta with x and y. क्या बात है? Yes, no? Simply write these equations in this form. Yes, no? ठीक है? इससे दो बातें पता चल गई। एक ये कि रोटेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है। रोटेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म। और दूसरा ये गौर कर लेंगे जो बेसिक मैट्रिक्स है इट इज ऑर्थोगोनल विद डिटरमिनेंट 1। डिटरमिनेंट 1 है। ऑर्थोगोनल ये है अगर Yes. Yes. इसका ट्रांसपोज इज दैट ओके? Yes. अब सवाल ये हमने तो 3 स्पेस के अंदर रोटेशन की थी ना, तो थर्ड कोऑर्डिनेट को क्या होगा? एक्चुअली आपका जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इससे चेंज ही नहीं होना। जब z ने z के अबाउट घूमना है, यानी जब पूरी दुनिया ने z के अबाउट घूमना है, z कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट स्टेज फिक्स्ड, क्योंकि रोटेशन z के ऑर्थोगोनल हो रही है। रोटेशन फॉर एग्जांपल xy प्लेन में हो रही है, तो z कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होना ना। अब आप इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जितने भी प्लेन हैं उन सबको ऐसे ही घूमते देखेंगे। हर पॉइंट का स्पेस के अंदर जो z कोऑर्डिनेट स्टेज फिक्स्ड। यस, दैट मींस z dash is equal to z. That means the following: 0 0 1 0 0 and this is rotation about z axis. ये दोबारा बता रही है आपने टेकले एक्सिस का क्या बताया? चूंकि सारे पॉइंट्स z एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, किसी भी पॉइंट का z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। सो z के लिहाज से जो उसका डिस्टेंस है वो उतना ही रहना है, x y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। यस, जब कोई पॉइंट जब वेक्टर जो है वो x एक्सिस के अबाउट घूमेंगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा एंड सो ऑन। यस, नो? ये पूरी डेरिवेशन देख ली आपने? यस सर। ओके, तो वहाँ पर उस इक्वेशन के साथ उस मैट्रिक्स में साइन थीटा सेकंड रो की सेकंड कॉलम यहाँ पे साइन थीटा नहीं, y के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई होगा। से सेकंड ये तो x है ना, x के साथ sin थीटा हो रहा है, अभी भी x के साथ ही sin थीटा हो रहा है। ठीक है? मेक सेंस? अच्छा यार, गौर से देखें जरा, यहाँ पे करा था ये z है, और यहाँ देख के मैंने सारी डेरिवेशन की तो वो z के अबाउट आ गई इस प्लेन के अंदर, मैट्रिक्स आ गया। यस, अब जरा गौर से देखें, अगर मेरे पास एक कुल्हाड़ी या कैंची या जो भी होगा और यहाँ से मैं काफी सारा हिस्सा काट दूँ यहाँ पे, ठीक है, और इस दीवार के अंदर घुस जाऊँ और ऐसे करके देखूँ, तो यहाँ से मुझे ये YZ प्लेन ऐसे नजर आएगा। ठीक है। यस, अब जो भी डेरिवेशन का तरीका मैंने वहां पे अप्लाई किया था एग्जैक्टली मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा एंड आई विल फाइंड आउट द रोटेशन अबाउट x एक्सिस। समझ आ गई? यस, नो? या इसको यूं समझ लें, या इसको यूं समझ लें, ऊपर ये x को पकड़े ऐसे करके, पकड़ लिया, इसको ऐसे लगाएं, ये z ऐसे लगाएं, ऐसे ही, फिर y और z को ऐसे घुमाएं, तो आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो ये होगी, एक्सिस हियर, x यहाँ पे आ जाएगा, जी ऊपर,
y यहाँ पे होगा और z यहाँ पे होगा। यस यस और अब आप जो भी रोटेशन फाइंड आउट करेंगे वो x के अबाउट आएगी। कुछ नहीं करना हमें डेरिवेशन में जहां जहां आपके पास x आ रहा है उसको z से रिप्लेस यानी I mean if you have x anywhere replace it with y, if you have y anywhere replace it with z and you will find out for example ये बनाया था इक्वेशन x dash is equal to first of all x should be replaced by what? जो पहले x का फॉर्म क्या है? So y dash is equal to y cos theta minus z sin theta। जो पहले y था वो z है ना? जो पहले y था वो z है। यस आप ये ड्राइव भी कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। मैं सिर्फ आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि उसी डेरिवेशन को यूज करें एंड फाइंड आउट द अदर मैट्रिक्स। Then we have this y bar जो पहले y था वो अब क्या है? z। So z bar is equal to what? z cos theta plus y sin theta and x bar is x। Yes अब देखिए जरा जी मैट्रिक्स 1 0 0 cos theta minus sin theta sin theta cos theta। So this is the rotation about y axis, rotation about x axis। Similarly you can find out rotation about y axis, not a big deal। Make sense? So these are three standard rotations, I mean z, x and y। इनका फायदा क्या मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। Is that okay? यस Yes, no? Yes. ये मैं थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एंड में ना ये मैथड में चला के दिखाऊँ आपको। So yes ये जो रोटेशन ये z एक्सिस के अराउंड ये क्लॉकवाइज होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज की है। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की ये जो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज वे में लगे हुआ है। क्लॉकवाइज वे में तो ये ऐसे होना था, क्लॉकवाइज वे में ये 360 माइनस थीटा है। ठीक है। इरेज कर दो जी, जी इरेज कर दो। ये इरेज कर दो ये साइड, इरेज कर दो। जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रोटेशन मैट्रिक्स गिवन हो तो आप उसका एक्सिस निकाल सकते हैं और उसका एंगल निकाल सकते हैं। एंगल निकालने का मैंने प्रूफ नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया कि आप निकाल सकते हैं अगर प्रॉब्लम रिवर्स हो। ये प्रूफ मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अगर प्रॉब्लम रिवर्स हो, अगर प्रॉब्लम ये हो कि आपको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया जाए और एंगल ऑफ रोटेशन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए रोटेशन मैट्रिक्स बनाओ, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दे दिया जाए 0.1 0.3 0.4 कोई वेक्टर और कहा जाए कि यार इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज 33 डिग्री मूव करना, रोटेट करना। व्हाट इज द रोटेशन मैट्रिक्स दैट डज दिस? मैं रिपोर्ट कर दूँ इसमें नहीं, oh this is for x y and z, these three are strict from for x y and z। I want to rotate about some axis that is not x y or z, some other axis। सही है, उस एक्सिस के अबाउट मैं 33 डिग्री से घुमाना चाहता हूँ। अगर मैं x एक्सिस के अबाउट 33 डिग्री से घुमाना चाहूँ I have the matrix। अगर मैं y एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहूँ I have these। लेकिन अगर मैं कोई arbitrary एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहता हूँ 33 डिग्री से, what is the rotation matrix? मेरी बात समझ में आ गई? सिंगल होगा उस केस में
सॉरी जो भी आर्बिट्रेट वेक्टर आता है जो आर्बिट्रेरी वेक्टर गिवन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है, एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है। पहले क्या था, रोटेशन मैट्रिक्स गिवन था, एक्सिस और एंगल निकालने। अब एक्सिस और एंगल गिवन है, रोटेशन मैट्रिक्स निकालने। सो हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, लेट्स सी। पहले क्या गिवन थे और पहले मुझे गिवन था रोटेशन मैट्रिक्स और मैंने फाइंड आउट करना था एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो लाल स्पेस से निकला है। एंगल ऑफ रोटेशन निकालना, वो ट्रेस से निकला है, मैं इसका प्रूफ करता हूँ। अब रिवर्स प्रॉब्लम है, नॉर्मली होता है ऐसे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है और एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है। मैंने एक खास इफेक्ट अचीव करना है, मैं इस एक्सिस के अबाउट 33 डिग्री घुमाऊंगा, दिस फैक्ट विल अचीव। अच्छा ठीक है, वो मैट्रिक्स कौन सा होगा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन एक्सिस है, तो वो कैसे निकालूं? ओके, फर्स्ट करें, मुझे v गिवन है, v इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मुझे थीटा गिवन है व्हिच इज द एंगल ऑफ रोटेशन एंड आई वांट टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स। सही है जी? मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करने जा रहा हूं खुद से, A जिसकी पहली वो है v1, A मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं जिसकी पहली वो है v1। सही है? ये v जो है ये यूनिट वेक्टर है, आई मीन इट्स लेंथ इज 1। अगर मुझे v गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये v वेक्टर मुझे गिवन है 1 1 1 लेट्स से 1/3 स्क्वायर रूट 1/3 स्क्वायर रूट 1/3 स्क्वायर रूट, इसकी मैग्नीट्यूड 1 ही आएगी। हां यस, ये लेट्स से मुझे गिवन है, ये कोई भी वेक्टर गिवन है जिसके 3 नंबर से गिवन है, और मैं यहां पे प्लेस कर दूंगा। अगर मैंने कोई एक वेक्टर निकालना हो जिसके ऑर्थोगोनल है, तो कैसे निकालूंगा? कोई एक, फॉर एग्जांपल मुझे so I will multiply this with some a, b and c and the product should be 0 and I need to find out the value of a, b and c. So मैं c और b को अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू चूज कर लेता हूँ, c को रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, b को रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ। a जो आपको पता है, yes, given a vector there are infinitely many vectors that are orthogonal to it. I'm going to find out any one. अच्छा, सही है? पैरामीटर वो वेक्टर मैंने फाइंड आउट किया, उसकी मैग्नीट्यूड 1 की, वो वेक्टर मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। I'm calling that vector as a1. Yes? अच्छा, Make sense? v1 v मुझे अवेलेबल था, a1 मैंने इसके ऑर्थोगोनल खुद से कंस्ट्रक्ट किया, a1 कंस्ट्रक्ट किया। Yes no? अच्छा, अब मैं v और a का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ और एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट करता हूँ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। That is my a2. अगर मैं ये मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और मैंने जिस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लिया इसका इसके साथ और रिजल्ट तीसरी जगह पे प्लेस किया, इसका डिटरमिनेंट 1 है, मैं ये का पावर फॉलो कर सकता। अगर मैं ये रोटेशन मैट्रिक्स है, ये कोई रोटेशन करता है, ये क्यों रोटेशन मैट्रिक्स है? क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट 1 या ये रोटेशन मैट्रिक्स है, ये कोई भी रोटेशन करेगा। जब ये मैट्रिक्स मैं पूरी स्पेस पे अप्लाई करूंगा तो मुख्तलिफ वेक्टर्स मुख्तलिफ जगह पे चले जाएंगे, लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है v वो x एक्सिस पे आ जाएगा। वहां से देखिए, ये मैट्रिक्स जब मैं अप्लाई करूंगा तो v कहां जाएगा? v goes to x axis and the other things they go according to jump v होता है। समझ आ रही? अब जो मेरी रोटेशन है वो ये है, मैं सबसे पहले a अप्लाई करता हूं, पूरी दुनिया घूम जाएगी और जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो x एक्सिस पे आ जाएगा। अब मैं x एक्सिस के अबाउट 33 डिग्री की रोटेशन करता हूं, वो मैं क्या करता हूं? मेरे पास मैट्रिक्स है, so I do rx with theta, ये वो मैट्रिक्स है, और फिर मैं ये ट्रांसपोज कर देता हूं ताकि सारा रिवर्स हो जाए। ये बेस एनिमेशन को जरा गौर से देखिए, पहले ये देखिए, गोल मेरा ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये दुनिया है, ये हाथ से इस दुनिया, ठीक, गोल मेरा ये है, दिस इज माय गोल, ठीक है, दिस इज माय गोल, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा गोल है, इसके बाद मैंने घुमाना था कि अब ये मैं गोल अचीव करने लगा, और ध्यान से एनिमेशन को देखिए। नहीं समझ आई? दोबारा से मैं इस एक्सिस के अबाउट पूरी दुनिया को घुमाना चाहता हूँ। लेट्स से माय ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज राइट नाउ इज द सैंड। माय गोल इज कि मैं इस एक्सिस के अबाउट इस सैंड को 33 डिग्री घुमाऊं। सो दिस इज लेट्स से माय गोल, ये ओरिजिनल पोजीशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। ये मैं करता कैसे हूँ? मैं पूरी दुनिया को इस तरह से घुमाता हूँ
कि ये जो एक्सेस है ना, ये एक्स एक्सिस पे मैप हो जाए। जो पूरी दुनिया घूमेगी तो पूरी दुनिया ही घूम रही है ना, यस, ये भी हाथ भी घूम, सारा कुछ घूमेगा ना। एक्स एक्सिस ये जो है ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। अब मैं एक्स एक्सिस के अबाउट पूरी दुनिया को 33 डिग्री पे घुमाता हूँ, सही है। अब जो मैंने ओरिजिनल रोटेशन की थी सबसे पहले वो मैं रिवर्स कर देता हूँ, समझ आ रही है? तो ये इफेक्ट जो है ये असल में ऐसे है, ये असल में हुआ ये इफेक्टिवली, मेक सेंस? यस नो? सर जो एक मैट्रिक्स ए ही है, यस उसके अंदर पहला वाला जो है रो है वो मल्टी है जो इंडिविजुअल है, यस तो जो बाकी तो उसके अंदर रोज देंगे वो म्यूचुअली और होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, और वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस यस यस। ये 3 नंबर आप गिवन है, ओ यस इनसे ये बनाए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, बना लें स्टेप बाय। ठीक। So now you can construct a matrix that rotates about an arbitrary axis with an angle theta, and this is that matrix. This is the matrix जो v के about theta से घुमाता है। You can construct this. और ये arbitrary axis के about घुमाने के लिए we need these standard rotations. Yes. सर हम करना तो सिर्फ 33 एंगल रोटेट करना रहता है ना, वो जो नीचे चीज जा रही है रोटेट करके ऊपर दोबारा आ रही है, उसका क्या मकसद था? हमें किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना नहीं आता, हमें एक्स एक्सिस के अबाउट करना आता है, वाई के अबाउट करना आता है, जी के अबाउट करना आता है, इसके अबाउट करना आता है। अब हमें तो इसके अबाउट नहीं आता, एक्स एक्सिस के आता है अबाउट, तो हम सारी दुनिया को एक्स एक्सिस पे ले जाते हैं, उसके अबाउट करके वापस जाते हैं। हुआ इसी के अबाउट है इवेंचुअली। यस ओके, फाइनल थिंग, एंड देन आई विल शो यू मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स इन MATLAB. Final last remark. The rotation matrix is equal to this one, or if R is equal to this, then trace of this matrix is equal to trace of this. अगर ये दो matrices equal हैं तो उनकी traces भी equal होंगी आपस में। Trace की प्रॉपर्टी होती है rotation प्रॉपर्टी, ये होती है कि if you have trace of A, B, C, D, let's say, तो जैसे वो circular linked list होती है, जैसे आप घुमा सकते हैं इसको, इस ऑर्डर में अगर आप मेट्रिसेस को रोटेट करें तो ट्रेस डजंट चेंज। सो फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA BC, दिस इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ CDA एंड सो ऑन। आप कोई से दो वेक्टर्स आपस में कम्यूट नहीं कर सकते मेट्रिसेस, लेकिन सर्कुलर वे में घुमाएंगे तो ट्रेस डजंट चेंज। आई एम गिविंग यू दिस प्रॉपर्टी विदाउट प्रूफ, ओके। With this property, the trace of this matrix is equal to this, and the trace of this matrix can be written as A transpose R x theta. Yes? And this A transpose is identity, so trace of this matrix is exactly trace of this matrix. Yes? And trace of this matrix is 1 plus 2 cos theta. 1 plus 2 cos theta is trace of R. R is some arbitrary rotation matrix. And theta is exactly the angle of rotation. जब आप आए थे नीचे तो आपने थीटा से रोटेट किया था ना? Yes, no. इसका मतलब अगर आपने एंगल ऑफ रोटेशन निकाला हो, that's the problem. दोबारा सुनो जी, मैं रिपीट करता हूँ। क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, लिहाजा इसकी ट्रेस और इसकी ट्रेस इक्वल। ट्रेस होती है डायगोनल एंट्रीज का सम। दिस इज व्हाट द ट्रेस इज। ट्रेस की प्रॉपर्टी है कि उसमें आप सर्कुलर वे में मूव कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सर्कुलर वे में डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, एंड स्टिल यू विल नॉट डिस्टर्ब द ट्रेस। विद दैट थिंग, अगर मैं ए को इसके यहाँ पे ले जाऊँ तो ट्रेस ऑफ दिस एंड दैट दे आर इक्वल। लेकिन जैसे ही ए यहाँ पे पहुंचा है, ए ट्रांसपोज दिस बिकम्स आइडेंटिटी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। जब ये खत्म हो गया तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ माय आर्बिट्रेरी रोटेशन मैट्रिक्स इज द सेम एज ट्रेस ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट एक्स। रोटेशन मैट्रिक्स जो ट्रेस है, इसकी जो ट्रेस है, इसके डायगोनल एंट्रीज का सम है। सो ट्रेस ऑफ माय मैट्रिक्स R is 1 plus 2 cos theta, where theta is the angle of rotation about which the matrix is going to rotate. So वो angle of rotation कैसे निकाल सकते हैं? ये 1 को इधर ले आए, -1 2 से डिवाइड करें cos इनवर्स, that's the formula
running in MATLAB. सही है जी? Okay. Sir. Yes. ट्रांसफॉर्मर से वापस कैसे लेकर आए? हाँ Sorry. ये वापस कैसे लेके आ रही है? ए ट्रांसपोज जाकर मल्टीप्लाई किया Oh. The matrix is orthogonal. Its inverse is transpose. So जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है अगर उसको इन्वर्ट करना है तो उसका इन्वर्स अप्लाई करना है. अगर एक आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है और उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप रिवर्स करना चाहते हैं, इन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स अप्लाई कर देना. ये देखिए इन्वर्स उस साइड से नहीं अप्लाई होना चाहिए. देखें, ये कोई पॉइंट था वर्ड, ये कोई पॉइंट था. ठीक है. इसको पहले मैंने इससे रोटेट किया, फिर मैंने इससे रोटेट किया, फिर ये जो पॉइंट आ चुका है उसको मैंने रिवर्स रोटेट कर दिया. अच्छा ये पॉइंट, ये ऑर्डर ऐसे आएगा सही है. जी. जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये 3D के पॉइंट्स हैं काफी सारे. सबसे पहले मैंने पूरी स्पेस को रोटेट किया सो दैट ए से. इस रोटेशन के बाद होगा ये कि ये जो v है ये x एक्सिस के साथ है. बाकी दुनिया जहाँ जाना चाहती है चली जाए. यस. फिर मैंने x एक्सिस के अबाउट थीटा से घुमा दिया. लेकिन ये सारा काम तो मैंने x एक्सिस के अबाउट जाके किया. मुझे तो इफेक्ट यहाँ पे चाहिए था. मैं यहाँ जाके ये इफेक्ट ले चुका हूँ. तो मैं पूरी दुनिया को वापस क्या करूँ? Yes, no. Okay, let's see some of these things running in MATLAB. Okay. अच्छा, दो चीजें हैं. आप मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन बताएं और थीटा बताएं. मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा. उस मैट्रिक्स की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे. फिर उस मैट्रिक्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन और थीटा हम निकालेंगे और देखेंगे वो इक्वल आता है या नहीं. सही है जी? फॉर एग्जांपल एक्सिस ऑफ रोटेशन. लेट्स से दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन. v is equal to let's say this is our axis of rotation. Clear? अच्छा भाई एक मिनट, Yes. ये बंद हो गया. हाँ.